السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے۔ تو جی آج میں لے کر آئی ہوں انتہائی عشق ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جس کو لکھا ہے عریشہ نے۔ یہ بہت ہی کمال کا ناول ہے اور بہت ہی مزے کا ناول ہے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ یہ پیراگراف پہ ختم کیا تھا کہ بہرام شاہ کی بربادی ہے اور میں اپنی زندگی اور اپنے مقصد میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ یہاں تک ہم نے ریڈ کیا تھا، اب ہم آگے سٹارٹ کریں گے۔ کیا آپ کا جاننا اتنا ضروری ہے اماں سائیں؟ جازم ان کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا، جبکہ شازم اس کے جانے پر بہت خوش تھا۔ کیا مطلب ہے جانا ضروری ہے؟ ظاہری سی بات ہے، جانا بہت ضروری ہے، اور وہ مامی کے گھر والے ہیں، اور اتنے عرصے کے بعد مامی سائیں ملنے جا رہی ہیں۔ وہ جازم گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے انداز میں تائشہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم صرف نور بھابی کے گھر ہی میں ہی جائیں گے اور کہیں نہیں، اس نے ہنستے ہوئے شازم سے کہا۔ ارے ایسے کیسے صرف مامی سائیں کے گھر جائیں گے؟ اس طرح سے تو واحد انکل کو برا لگ جائے گا، آخر ان کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں لڑکی سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن رشتہ داری تو ہے نا ہماری، اور اب رشتہ داری کی ہے تو نبھانی تو پڑے گی۔ شازم نے فوراً صفائی پیش کی، جس پر تائشہ کھل کر مسکرائی۔ ہاں، اور وہاں جا کر اپنی بہو کو اپنے بیٹے کا سلام بھی دے آئیے گا، جو یہاں بیٹھا بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جازم نے اسے سناتے ہوئے کہا، جبکہ تائشہ ان دونوں کی بحث کو اگنور کرتے اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی، کیونکہ جازم کو رات چائے پیے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ حد تو دیکھو، زائلہ پر روب جماتے ہوئے، اور میری ذرا سی بات بن رہی ہے تو آگ لگ گئی ہے۔ پتہ نہیں کیسے برداشت کرے گی تم جیسے کھڑوس کو، جو دو لفظ بھی محبت کے نام بولے۔ شازم اسے سناتے ہوئے بولا، سچی محبت کرتا ہوں اس سے، تمہاری طرح پلاسٹک کا عاشق نہیں ہوں۔ جازم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو جازم سائیں، ہم عاشقوں کی لائن سے نکل کر شوہروں کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں۔ شازم فرضی کالر کھڑا کرتا ہوا بولا، اس لسٹ میں تو میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، بس وہ حسین چڑیل مانے تو صحیح۔ ایک بار جازم نے حسرت سے کہا، اس کے لیے تو تمہیں مر کے دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا، کیونکہ عشق میں جان دینی پڑتی ہے، لیکن وہاں بھی تمہاری دال گلنے کے صرف 1% چانسز ہیں، کیونکہ وہ بات بھی وہاں بنتی ہے، یہاں بات دونوں طرف سے پکی ہو، اس لیے تمہارے مر کے زندہ ہونے کا بھی تمہیں کوئی خاص فائدہ نہیں۔ تو ٹرائی مت کرنا، کیونکہ صرف 1% چانس پہ میں اپنا اتنا کام کا جڑواں بھائی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ شازم نے لاڈ سے کہا، یقیناً کوئی مطلب تھا، ورنہ شازم کو اس پر کم ہی پیار آتا تھا۔ اس معاملے میں وہ اپنی فیورٹ کزن زحیلہ کو ساتھ دیتا تھا، جس کے سامنے جازم سائیں کو اچھا کا الف کہنا بھی گناہ عظیم تھا۔ زیادہ مسکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا مقصد بتاؤ۔ اس کا یہ لاڈ جازم سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بائک چاہیے، پیار سے دال گلتی نہ دیکھ کر وہ بھی اپنے آپ پر آ گیا۔ اللہ کرے آج غلطی سے تمہاری اور زائلہ کی بات ہو جائے، میں دل سے دعا دے رہا ہوں، غلطی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خود سے وہ تم سے بات کرے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ شازم نے بدتسی دکھاتے ہوئے کہا، تو جازم ذرا بھی مسکرا دیا، کیونکہ اس کی دعا کچھ حد تک اسے بھی اچھی لگی تھی۔ اپنی جیب سے بائک کی چابی نکال کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے وہ اسے وارن کرنا نہیں بھولا، احتیاط سے چلانا، خبردار جو کسی بھی قسم کا غیر قانونی کام کیا، جیل کے اندر لے کے جاؤں گا، اتنے ڈنڈے لگاؤں گا پچھواڑے پہ، کبھی زندگی میں بیٹھ نہیں پاؤ گے۔ اور کچھ جاز نے دانت دکھاتے ہوئے پوچھا، اپنی شکل غائب کرو۔ اس طرح سے دانت دکھانے پر جاز نے انگلی سے اشارہ کیا اور اشارہ ملتے ہوئے بوتل کی جن کی طرح غائب ہو گیا۔ اماں سائیں، میں آپ کو بہت مس کروں گا، زائلہ نے نور کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ اندر سے اس کے جانے پر کوئی خوش نہیں تھی۔ مومنہ کے نور کے گھر سے جانے پر اسے ہر کام سے آزادی مل جانی تھی۔ حیدر اور یاسم دونوں ہی اپنی مسکراہٹ دبا گئے، کیونکہ کل رات ہی تو زائلہ نے کہا تھا کہ اماں سائیں جائیں گی تو میں سکون سے ڈائجسٹ پڑھوں گی، ٹی وی دیکھوں گی، سب سے اہم بات کہ اماں سائیں نہیں ہوں گی تو کوئی روک نہیں کرے گا اور وہ سکون سے رہے گی بنا جازم نامے سے۔ لیکن اس وقت اس کے ڈرامے دیکھ کر نور کو بھی اس پر یقین آنے لگا تھا۔
گھر کا دھیان رکھنا، ذرا لاپرواہی برداشت نہیں کروں گی۔ میں یہ نہ ہو کہ سب کچھ نوکروں پہ چھوڑ چھاڑ کر کبھی سہیلیوں کے ساتھ فون پہ لگی رہو تو کبھی ڈائجسٹ پڑھتی رہو۔ اور خبردار، جو 3 دنوں میں تمہیں ٹی وی آن کیا، جاظم سائیں کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ کل کو تمہاری شادی ہونی ہے، اس کے ساتھ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو اس کی پسند میں ڈھالنا چاہیے، جس طرح سے میں نے اپنے آپ کو تمہارے بابا سائیں کی پسند میں ڈھالا۔ نور کا جاظم نامہ شروع ہوتے ہی اس کا اندر تک کڑوا ہو گیا۔ نور اس بے زار انداز اگنور کرتے ہوئے سختی سے بولی، اور آپ کھانا وقت پہ کھائیے گا، اور دوائیاں بھی۔ اس بار اس کا نشانہ حیدر شاہ تھا، جو حکم میری سرکار حیدر کو سے خم دیتا نرمی سے مسکرا کر بولا۔ اور اس کے اس رومانٹک انداز پر زائلہ نے منہ کو گول کرتے ہوئے اوو کو اتنا لمبا کھینچا کہ نور شرمندگی سے حیدر کو گھورنے لگی۔ اس طرح سے شرمانے پر یاسم بھی مسکرایا۔ میں آپ کا سامان باہر گاڑی میں رکھ کے آتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے بیگ اٹھایا، جبکہ نور نے نہ تو اسے کوئی ہدایت دی تھی، نہ ہی اپنا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن یاسم نے نہیں کہا اور نہ ہی اسے اپنی ماں سے اسی فکر مندی اور ہدایت کی امید نہیں تھی۔ اسی لیے خاموشی سے بیگ اٹھا کر گاڑی میں رکھتے ہوئے نور کو خدا حافظ کہا، جبکہ نور جاتے جاتے بھی زائلہ کو گھر کا خیال رکھنے کی بہت ساری ہدایات دے چکی تھی، جس پر زائلہ نے اسے بے فکر رکھنے کی کوشش کی، لیکن شاید ہی نور کو اس پر یقین تھا۔ اور بابا سائیں، اماں سائیں تو مٹھائی کی ٹوکری یہیں رکھ کر چلی گئی، دیکھیں تو اس نے ٹیبل پر مٹھائی کی ٹوکری کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو میری ماں بھی نا بہت بھلکڑ ہے، میں ابھی پھپھو سائیں کو فون کر کے بتاتی ہوں، اب اماں سائیں کو بتایا تو وہ جاتے جاتے پھر سے بھول جائیں گی۔ زائلہ نے مسکرا کر اپنا فون اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اب وہ کافی دیر تائشہ سے فون پر بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ موبائل کب سے بجے جا رہا تھا، لیکن تائشہ تیاریوں میں بزی تھی۔ جمل کی غیر موجودگی میں دونوں بھائیوں کو اکیلا چھوڑ کے جا رہی تھی، اس کی پریشانی تھی، نہ جانے ان دونوں نے پیچھے گھر کا کیا حال کرنا تھا۔ جاظم تو سمجھدار تھا، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا اس کی عادت تھی، بلکہ یوں کہنا ٹھیک رہے گا کہ وہ سر سے پاؤں تک دوسرا جنید تھا، لیکن شاظم کے انداز میں ذرا بے ترتیبی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جاظم نے جب ہوش سنبھالا تو شاظم سے اپنا کمرہ الگ کر چکا تھا، کیونکہ اسے گندگی پسند نہیں تھی۔ نور کے بھائی کی بیٹی کی شادی تھی، جس کی وجہ سے تائشہ اور نور دونوں ہی شادی پر جانے کے لیے تیار تھیں۔ جاظم بیٹا فون اٹھاؤ، اپنی مامی کو کہو کہ میں بالکل تیار ہوں، میں تب تک تمہارے لیے چائے بنا دیتی ہوں، اس نے کچن سے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ جاظم باہر فون کے قریب آیا، لیکن سامنے زائلہ کا نمبر فون پر آتا دیکھ کر اس کے لب اپنے آپ مسکرائے تھے۔ السلام علیکم فیوچر مسز جاظم خان۔ چہرے پر ایک الگ سی دلکشی تھی، شاید شاظم کی کل رات کی دعا قبول ہوئی تھی۔ جبکہ اس کی آواز سنتے ہی دوسری طرف زائلہ غصے سے فون ہی بند کر دینا چاہتی تھی، لیکن مٹھائی کی بات بتانا بھی بہت ضروری تھی۔ مجھے پھپھو سائیں سے بات کرنی ہے، فون دیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ میں بھی تو پھپھو سائیں کا ہی بیٹا ہوں، مجھ سے بات کر لو، وہ خلاف عادت مسکرا کر بولا۔ اگر میں تمہاری ان چھچوری حرکتوں کا کسی کو بتا دوں نا تو میری جان کوئی یقین نہیں کرے گا، تم اپنی انرجی ویسٹ مت کرو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سننے اور مسکراتے ہوئے لہجے پر غور کرنے کے بعد زائلہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، اس نے سب کے سامنے اپنی ایسی امیج بنا کر رکھی تھی کہ کوئی بھی زائلہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ ایک بار تو اس نے جاظم کی ہر بات نور کو بتا دی تھی، جس کے بعد نور نے اس کے سر پر چمٹ لگائی تھی کہ جاظم سے ضد لگا کر وہ کردار کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور بیچاری نور کیا جانے کہ جاظم سے چھوڑوں کی حدود سے 10 قدم آگے ہے، لیکن صرف اپنی زائلہ کے لیے، دنیا کی کسی اور لڑکی سے تو اس کا تو کوئی مطلب ہی نہ تھا۔ وہ دن دور نہیں جاظم جنید خان، جب تمہاری حقیقت سب کے سامنے کھولوں گی، سب کے سامنے بتاؤں گی کہ تم ہو کیا، سب کو پتہ چلے گا کہ کتنا گھٹیا کردار ہے تمہارا۔ ویٹ اے منٹ، کیا گندگی دیکھ لی ہے تم نے میرے کردار میں؟ اس کی بات پر جاظم کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ تم جس طرح سے بات کرتے ہو مجھ سے، صرف تم سے ہی کرتا ہوں نا، بیوی ہو تم میری، ہونے والی،
وہ जतलाते हुआ बोला, तुम्हारे ख्वाबों में इसकी होने वाली बीवी की गर्दान पर वो चिढ़कर बोली, मेरे नहीं, मेरी जान तुम्हारे ख्वाबों में रोज न सही लेकिन एक दिन छोड़ के तो आता ही हूँ। मैं ड्यूटी बहुत टफ है, रोज नहीं आ सकता, और वैसे भी मैंने सुना है कि ख्वाबों के शहजादे को अगर रोज ख्वाबों में देखा जाए तो वो शक्ल बोर हो जाती है, इसलिए ज्यादा नहीं आता। लेकिन इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है। इसके खुश्क बेतासुर लहजे पर जाजिम को गुस्सा आता था, लेकिन इसके चिढ़ने पर जाजिम को मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो क्या जाने, इसका यही अंदाज अयला को इसे नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। वो तो तायशा और हैदर की माँ की ख्वाहिश थी कि ज़ायला जाज़िम की दुल्हन बने। ये अलग बात है कि जाज़िम ने ज़ायला के पैदा होते ही कह दिया था कि वो सिर्फ इसकी डोल है। बचपन में तो वो इसके लिए इस हद तक टची था कि वो इसे किसी को देखने तक नहीं देता था। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही एहसास हो गया कि ज़ायला तो इसी की है, इसी के साथ ही रहना है सारी ज़िंदगी, इसी के साथ गुज़ारनी है। और इस बात को समझते हुए इसने ज़ायला को जब सस्पेंस देना शुरू किया तो इससे ज़रूरत से ज़्यादा ही दूर हो गई। लेकिन अब जाज़िम ने फैसला किया था कि वो जल्द अज़ जल्द इसे अपनी दुल्हन बनाकर ले आएगा। आखिर इसे बताना भी था कि ज़ायला हैदर शाह जाज़िम जुनैद खान के दिल की दुनिया की मलका है। जाज़िम का तो दिल इससे बातें करने से कभी नहीं भरता था, लेकिन सामने से तायशा को आता देखकर वो फौरन ही शरीफ सा बच्चा बन गया। ये आ गई आपकी फूफा ताई, बात कर लें। इनसे फ़ोन तायशा की तरफ बढ़ाया और इसके अंदाज पर ज़ायला फिर जल उठी। कितना मीसना इंसान था, पल में तोला पल में माशा। फ़ोन ताशा को पकड़ाकर वो मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। आज का दिन इसका अच्छा ही गुजरना था। आखिर अपने दिल के तहलके से वो बात कर चुका था। सर, हम इस लड़की को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो अकेले में बाहर निकलती है और ना ही आजकल कॉलेज जाती है, और सर वो ज़्यादातर बाहर निकलती है तो किसी पब्लिक प्लेस में जाती है। अगर इसे काम में आपका नाम आ गया तो आपकी कुर्सी छिन जाएगी। पहले ही 10 साल जेल में रहने की वजह से पार्टी आपको कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे में आपका कोई भी काम इस तरह से लिंक आउट हुआ तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। वाजिद की बात सुनने के बाद इसने हाँ में सर हिलाया। एक तरह से वो ठीक कह रहा था, जबकि जब तक इसे पार्टी की मेंबरशिप न मिले तब तक वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और अगर एक 16 साल लड़की के कत्ल केस में इसका नाम गलती से भी आ जाता तो वो सारे दुश्मन जहाँ इस वर्क प्लेस में इसने बना रखे थे तो इससे फंसाने की कोशिश करते हुए इसकी कुर्सी छीनना चाहते थे, लेकिन वो आसानी से इस कुर्सी को नहीं छोड़ सकता था। आखिर ये इसके बाबा की ख्वाहिश थी। ठीक है, जब तक पार्टी का फैसला नहीं हो जाता तब तक इस लड़की पर नज़र रखो, लेकिन जैसे ही मौका मिले इसे ख़त्म कर दो। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मैं इलेक्शन जीतूँ बहराम शाह अपनी बहन का शोक मना रहा हो। इसने सफाक लहजे में कहते हुए अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। वो जितना खुद को हुरम के बारे में सोचने के लिए रोक रहा था, वो इतना ही इसके ज़हन और दिल पर सवार होती जा रही थी। आज 5 दिन गुज़र चुके थे, लेकिन वो वापस स्टेडियम नहीं गया था। इसने पार्टी का जलसा भी किसी और जगह मुनक्किद कर लिया था, क्योंकि इसके दिल में डर बैठ चुका था। इस लड़की को देखने के बाद इसके दिल में कोई जज़्बात जागे थे, जो वो खुद जो उनसे जज़्बात जागे थे, वो खुद भी इससे बेखबर था। लेकिन इन जज़्बात की वजह से अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ बहराम शाह को ज़िंदगी के हर मकसद में नाकाम करना था, इसे अकेला और तन्हा कर देना, जिस तरह से वो तन्हा था। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने यहाँ ये सुना है कि शाहरुख खान यहाँ आने वाला है? वो पिछले 3 घंटे से धूप में हलकान हो रही थी। जब छोटे जासूस से पूछने लगी, वो 3 घंटे से यहाँ खड़ी इस पर नज़र रखे हुए थी। फिर 3 घंटों के दौरान ना तो यहाँ से कोई आया और ना ही कोई अंदर गया। हाँ बाजी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। कसम ले लें, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। शाहरुख खान बेस बदल के आज यहाँ आने वाला है, सब इंस्पेक्टर किसी को फ़ोन पर कह रहा था, और ये सुनते ही मैंने सबसे पहले आपको बताया। वो आज कोई सबूत देने यहाँ इंस्पेक्टर से मिलने आने वाला है। सब इंस्पेक्टर को डर है कि कोई इसे पहचान ना ले, इसलिए वो अपना भेस बदल कर आ रहा है। और आपको तो पता है कि आज तक मैंने आपको कोई झूठी खबर नहीं दी। छोटा जासूस बुरा मनाते हुए बोला। लेकिन छोटे जासूस, यहाँ से 3 घंटे से कोई नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि वो शाहरुख खान कोई और शाहरुख खान था, जो आकर चला भी गया होगा। जमील परेशानी से बोली, हाँ बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में खासकर इस इलाके में तो करोड़ों के हिसाब से शाहरुख खान सीक्रेट एजेंट घूम रहे हैं।
मैंने कहा ना, मैं पिछले 1 हफ्ते से इन लोगों की सारी बातें सुन रहा हूँ। वो लोग मुझे बच्चा समझते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि मैं तो आपकी टीम का मेंबर हूँ और आपने मुझे यहाँ भेज रखा है। बाजी, मैं कसम खा के कहता हूँ कि वो शाहरुख खान के बारे में ही बात कर रहा था और शो इंस्पेक्टर तो सुबह से थाने की सफाई करवा रहे थे कि आज सब इंस्पेक्टर का कोई भी आप आईपी वीआईपी दोस्त आने वाला है और इसकी नज़र हर चीज़ पर होगी। छोटे जासूस ने इसे तफसील से बताया। छोटा जासूस अमल का खुफिया जासूस था। यहाँ थाने के सामने बाहर तोते के ठेले पर काम करता था और ये अंदर भी सबको चाय देता था। इसके अलावा इन सब लोगों पर नजर रखना भी छोटे जासूस का काम था। वो उम्र में तो सिर्फ 12 साल का था, लेकिन अकल बहुत बड़ी थी। जमल नाउमीदी से कभी छोटे जासूस को तो कभी थाने के दरवाजे को देख रही थी, जब सामने ही कंधे पर हंदी फटी हुई शर्ट लटकाए बाहर निकला। अस्तगफिरुल्लाह, ये फिर से पीछे पड़ जाएगा, भाग। छोटू धमल दूर से ही गब्बर को पहचान चुकी थी और शायद गब्बर भी इसे देख चुका था, इसीलिए इसके भागने से पहले ही वो इसके करीब पहुंच चुका था। हाय मेरी फुलझड़ी, कितने दिनों से याद कर रहा था तुझे। देखा, दिल को दिल से राह होती है और वो राह इतनी लंबी है कि जहाँ मैं जाता हूँ तू पीछे पहुंच जाती है मेरी पटाखा। वो मुंह में पान दबाए बिल्कुल इसके चेहरे के करीब आकर बोला, बहुत ढीठ इंसान देखे हैं जिंदगी में, लेकिन तुम्हारा तो अलग ही लेवल है। पीछे रहो तुम, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है। वो इसके सीने पर हाथ रखती से पीछे की तरफ धकेलते हुए गुस्से से बोली, जबकि इसका पान की वजह से सुर्ख मुंह देखकर इसका दिल खराब होने लगा था। हाय मेरी चमक छल्लो, तुझसे एक दिन बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे सारी जिंदगी कैसे बर्दाश्त करेगी मेरी बसंती। वो अपने छिछोरे अंदाज में कहता है, इसके गाल पर चुटकी काट कर गोया हुआ, जबकि इसके इस अंदाज पर जमल को एक बार फिर से गुस्सा आ गया। इसका नाजुक हाथ एक बार फिर से इसके गाल पर अपना निशान छोड़ गया। देखो, मैं नरमी की बात कर रही हूँ, लेकिन तुम किसी किस्म की नरमी के लायक ही नहीं हो। शायद तुम जाजिम जुनैद खान को नहीं जानते, काट कर रख देगा तुम्हें। वो गुस्से से घूमते हुए बोली। वो काफी दिनों से इसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन शायद अब ये बात जाजिम को बताना चाहिए कि इसे कोई तंग कर रहा है। लेकिन इसके बात को सुनकर वो गुस्से से घूरने लगा और फिर अगले ही लम्हे मुंह से थूक के जरिए पान निकाल के वो इसका हाथ पकड़कर इसे घसीट कर अपने करीब कर चुका था। जाजिम कौन है? सुनाई नहीं दे रहा? मैं पूछ रहा हूँ, जाजिम कौन है? अगर बॉयफ्रेंड है तो ब्रेकअप कर ले, अगर मंगेतर है तो मंगनी तोड़ दे, अगर शोहर है तो तलाक ले ले, क्योंकि अब तुझ पे सिर्फ गब्बर का हक है। इसकी आंखों से शरारे फूट रहे थे। जासिम का नाम है, अच्छा खासा गुस्सा दिला चुका था, जबकि छोटू तो इन दोनों को घूरे जा रहा था। बाहर इसे बाहर अचानक इस रोमांटिक प्लस ढीठ तरीन इंसान को हुआ क्या था कि वो इस तरह से गुस्सा करने लगा। अबे ओए, बी ग्रेट मूवीज के विलन के एक्स्ट्रा गुंडे जाजम लाला जमल बाजी के भाई हैं और थाने में इंस्पेक्टर हैं। जमल गब्बर के हाथ से मुसलसल अपना बाजू छुड़ाने में हलकान हो रही थी, क्योंकि इसके हाथ की उंगलियां जमल के बाजू में दसती जा रही थी और जिस अंदाज में इसे घूर रहा था, जमल अंदर तक कांप कर रह गई थी। इसकी आंखों से जमल को अजीब सा खौफ आ रहा था, लेकिन छोटू की बात पर एक बार फिर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। अच्छा, तो अपन का साला है क्या? पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बसंती यहाँ अंदर काम करता है क्या? पहले 10 दिन में चक्कर लगाता था, अब एक हफ्ते में लगाया करूंगा। आखिर साले को अपनी शादी के लिए भी तो मनाना है ना, शादी के लिए भी तो मनाना है ना। वो गुस्सा छोड़ के अपने पुराने अंदाज में वापस आ चुका था, जबकि जमल ने इससे बहस करने से बेहतर अपना रास्ता बदलना समझा। इसके हाथ से अपना हाथ खींचकर बिना कुछ बोले इसके करीब से गुजरकर वापस जा चुकी थी। घटिया इंसान, ये तो शादी की तैयारी कर रहा है। बढ़ाया गुंडे को लगता है मैं इससे शादी करूंगी। धवल जुनैद तो इसकी शक्ल भी ना देखे। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई अपनी गाड़ी में आ गई थी, लेकिन पीछे से खुद पर इसकी निगाहों को महसूस करते हुए एक बार मुड़ के देखा। चेहरे पर मोहब्बत, बड़ी नरमी और मुस्कुराहट सजाए हुए इसे देख रहा था। फिर इसके देखने पर हाथ उठा कर हिलाकर इसे बाय बाय करने लगा, जबकि इसकी हरकत पर वो फौरन अपनी गाड़ी में ही बैठी थी। इस वक्त जानू साईं बड़े ही जोरों शोर से अपने होने वाले पेपर्स की तैयारी कर रही थी। दादू साईं और दिल दोनों ने इसके पास होने
पर कुछ स्पेशल गिफ्ट देने का ऐलान किया था, जिसके लालच में आजकल वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। आजकल तो इसके पास किसी से बात करने का भी वक्त ना था। ये ना हो कि बातों में इसका वक्त ज़ाया हो जाए और वो पेपर्स की तैयारी ना कर सके, फिर तो इसका गिफ्ट भी ज़ाया हो जाएगा। और हुरम उर्फ जानू, मुकद्दम साईं, आपने गिफ्ट पर कभी रिस्क नहीं ले सकती। वो वैसे खुद भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। दादू साईं इसे बताती रहती थी कि मुकद्दम शाह पढ़ाई में इतना अच्छा था कि दानिशदार साईं ने इसे लंदन से डिग्री दिलवाई थी। अब अपने बाप की तरह बहादुर थोड़ी ना थी, तो वो अकेले लंदन जाकर डिग्री ले लेती। इसलिए वो यहीं रहकर बहुत सारी मेहनत कर रही थी, ताकि इसके बहुत अच्छे नंबर आएँ। दिल और दादू साईं अपना वादा पूरा करें। कल दादू साईं गाँव शादी पे जाने वाली थी। नूर आंटी के भाई की बेटी की शादी थी। हैदर अंकल को अपने काम से फुर्सत ना थी, तो ज़ायला दीदा सिर्फ आजकल अपनी पढ़ाई के पीछे पड़ी थी। अगले हफ्ते से इनके प्री पेपर शुरू होने वाले थे। यासिम लाला तो खानदान के किसी भी मसले में बिल्कुल नहीं पड़ते थे। शादी चाहे चाहे शादी हो या कोई त्योहार, वो कभी खानदान में शामिल नहीं होते थे। लेकिन जब भी इनके घर आते ही इसके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाते थे, इसलिए इसे बहुत अच्छे लगते थे। शादी पे सिर्फ तायशा, फूफो, साईं और नूर आंटी ही गई हुई थीं। लेकिन नूर आंटी के बहुत करीबी रिश्तेदार थे, इसलिए कल सुबह दादा साईं ने भी यहाँ से गाँव के लिए निकलना था। जो जानू साईं को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि कल भी तो इन दोनों ने अकेले ही घर पे रहना था, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो इन दोनों के साथ ही चली जाती। कल वो दोनों अकेले घर पर होंगी, ये बात सोच के जानू साईं की हालत ख़राब हो रही थी, जबकि दिल बहुत बहादुर था। इसका कहना था कि अपना ही तो घर है, अकेले रहें या किसी के साथ क्या फ़र्क पड़ता है, बिना इजाज़त कोई घर के अंदर थोड़ी ना आ जाएगा। लेकिन जानू सदा की डरपोक थी, वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकती थी। इस वक़्त वो कहीं सब बातें सोचती अपनी पढ़ाई में बिज़ी थी, जबकि करीब रखा हुआ फ़ोन बजने लगा। इसने एक नज़र दिल के कमरे की तरफ देखा, दिल तो नमाज़ पढ़कर अब सो रही थी और दादू साईं की नमाज़ें आजकल लंबी होती जा रही थीं। वो खुद से बुड़बुड़ाती फ़ोन की तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम, इसने फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ की बात सुने बगैर ही सलाम पेश किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? अपनी बहन की आवाज़ सुनते ही वो अपने लब लहजे में दुनिया जहाँ की मोहब्बत समो कर बोला। जबकि बहराम शाह की आवाज़ सुनने के बाद जानू तो कुछ बोल ही नहीं पाई। न जाने क्यों आँखों में आँसू आने लगे थे। इसने एक बार दिल के दरवाज़े की तरफ देखा, कहीं इसे पता ही ना चल जाए कि वो अपने लाला से बात कर रही बात कर रही है। लेकिन फिर इसने सोचा कि दिल ने तो कभी भी इनसे बात करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन शायद वो बहराम शाह से बात करेगी तो दिल इससे खफ़ा हो जाएगी, ये इसकी अपनी सोच थी। एक पल के लिए दिल चाह के सारी नाराज़गी भुलाकर वो इससे बात करने लगी, लेकिन वजह इतनी छोटी तो ना थी कि वो इसके मोहब्बत भरे लहजे में अपना सब कुछ भूलकर इससे रिश्ता निभाने लगे। दादू साईं नमाज़ पढ़ रही हैं, आप बाद में फ़ोन कीजिए। वो बहुत मुश्किल से अपने लहजे में गुस्सा लिए बोली, फ़ोन बंद कर चुकी थी। जबकि इसके गुस्से से भरी हुई आवाज़ पर वो मुस्कुराते हुए से रोकने की कोशिश कर रहा था। जब फ़ोन बंद होने की आवाज़ सुनी, एक लम्हे में ही दिल उदास होकर रह गया। अल्लाह साईं, मैं जानता हूँ ये मेरा इम्तिहान है, लेकिन मेरी गुड़िया का कौशल का तो मेरे लिए नरम कफ़ दें। लेकिन मेरी गुड़िया का दिल तो मेरे लिए नरम कर दे। मैं इस दुनिया में किसी की भी नफ़रत झेल नहीं सकता, लेकिन आप अपनी गुड़िया की मैं इस दुनिया में किसी की भी नफ़रत झेल सकता हूँ, लेकिन अपनी गुड़िया की नहीं। आप लोगों से मेरी बहुत-बहुत माज़रत है, ये लिखने में राइटिंग में थोड़ा-सा इश्यू है, तो इसलिए कुछ वर्ड जो है ना वो समझ में नहीं आते हैं, गलत लिखे गए हैं कुछ वर्ड। तो इसके लिए मैं आपसे बहुत-बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, अगर कोई गलती हो जाए, पढ़ने में कोई मिस्टेक हो जाए, तो प्लीज़ उसको दरगुज़र कीजिएगा, उसको बुरा ना मानिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी हो रही है बहुत कोशिश करने के बावजूद, तो इसलिए मैं एडवांस में आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। जी, आप बेशक मेरा इम्तिहान ले लें, लेकिन एक मेरी बहन को तो मुझे दे दें, इसने दिल से दुआ माँगी थी। दादू साईं फ़ोन आया था, मैंने कहा अब नमाज़ पढ़ रही हैं, जब फ़ारिग हो गई तब बात करेंगी। वो नमाज़ पढ़कर बाहर आईं तो जानू साईं ने बताया किसका फ़ोन था। जानू साईं वो इसके करीब बैठकर मुस्कुराकर पूछने लगी, वो इनका लाला कहने की आदत नहीं रही थी। इनका किनका? इसके अंदाज़ पर वो मुस्कुराकर फिर से पूछने लगी।
आपके पोते का। वो खासी देर सोच कर बोली। बहराम का फोन आया था, तुमने बात की? इससे वो एक उम्मीद से पूछने लगी। मैं कहा, आप नमाज पढ़ रही हैं? मैंने कहा, आप नमाज पढ़ रही हैं। वो इनसे नजरें चुरा गई। दादो साईं मूसी हाँ में सर हिलाती उठकर फोन के पास आई, जबकि जानू अपनी बुक्स उठाकर दिल के कमरे में आ गई। जिस दिन वो परेशान होती वो दिल के कमरे में सोती थी, वरना दादो साईं ने बचपन से ही इसे और दिल को अलग अलग कमरे में रहने की आदत डाली थी। शुरू शुरू में जानू के लिए मुश्किल था, फिर इसे आदत हो गई, लेकिन अब भी वो कभी कभी दिल के साथ आकर सो जाती थी। वो लड़की मेरे ज़हन से जाती नहीं है, क्यों हर वक़्त इसका ख़्याल रहता है, क्यों इसे देखने की ख़्वाहिश दिल बार-बार करता है, क्या होता जा रहा है मुझे समझना चाहिए। मैं और वो लड़की कैसे? वो मुझसे बहुत छोटी है उम्र में, मेरा मकसद कुछ और है, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में इस तरह से नहीं सोच सकता। मुझे मेरे मकसद के बारे में सोचना है, बहराम शाह की बर्बादी के बारे में सोचना है, लेकिन मैं क्या करूँ? वो लड़की मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है। इस वक़्त वो अपने कमरे में तन्हा बैठा हुर्रम के बारे में सोच रहा था। मुझे इस लड़की के बारे में पता करवाना चाहिए, वो कौन है, कहाँ रहती है, इसके वालिदैन कौन हैं? इसने एक फ़ैसला किया, फिर अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करने लगा। लेकिन क्यों? मुझे इसके बारे में क्यों पूछना चाहिए? क्यों क्यों इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए? दाइम शाह सूरी, ये तुम किस रास्ते पर जा निकले हो? अपने मकसद के बारे में सोचो। ये प्यार, मोहब्बत, शादी, रिश्ते, ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। अपने दिल को डरते हुए बोला। प्यार, मोहब्बत, मैं इस लड़की से मोहब्बत तो नहीं करता था। वो लड़की देखकर अच्छी लगी थी, बस बात खत्म। लेकिन बात इस तरह से खत्म नहीं हुई थी। अगर वो सिर्फ इसे अच्छी लगी होती तो इसे देखकर भूल जाता। वो तो इसके दिलो दिमाग पर बुरी तरह से हावी हो चुकी थी। तो क्या मैं इसे अपने साथ रखकर बहराम शाह से अपना इंतकाम नहीं ले सकता? क्या बहराम शाह मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत रखता है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ सकता? या बहराम शाह के होते हुए मुझे अपनी खुशियाँ जीने का कोई हक नहीं? क्या अपनी खुशियों के साथ मैं बहराम शाह से अपना इंतकाम नहीं ले सकता? क्या मुझे खो देना चाहिए इसे अपनी ही सोचों में? इसने अपने दिल को बहुत बुरी तरह से धड़कते हुए महसूस किया। नहीं, मैं इसे खो नहीं सकता। मैं बहराम शाह के लिए इस तरह से अपनी ज़िंदगी नहीं खोऊँगा। वो खुश है, अपनी खुशियाँ जी रहा है, तो मैं क्यों अपनी खुशियों से महरूम रहूँ? वो अपने अपनों के बीच है, तो मैं क्यों सबको खुद से दूर रखूं? नहीं बहराम शाह, मुझे भी अपनी खुशियाँ जीने का पूरा हक है, और मैं भी अपनी खुशियाँ जीऊंगा। मैं इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूंगा, इसके साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारूंगा। वो इसे कहता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट के साथ इसका डिंपल आबोताब से चमक रहा था। इसने अपने इंतकाम और खुशियों में से किसी एक को चुन लिया था, या शायद दोनों को चुन लिया था, लेकिन वो खुश था, बेइंतहा खुश। इसने अपनी ज़िंदगी को खुद से दूर ना करने का फैसला किया था। बहराम साईं, आप फारिग हो गए हैं तो मैं कल ही गाँव के लिए निकल जाती हूँ। नूर के करीबी रिश्तेदार हैं और हमारे ख़ानदान से बहुत कम लोग आ गए हैं, यहाँ तक कि नूर के बच्चे तक शादी पर नहीं गए। अब आप कल रात यहीं आ रहे हैं तो मैं भी बेफ़िक्र हो जाऊँगी लड़कियों की तरफ से, और परसों शाम तक मैं वापस आ जाऊँगी। लड़कियाँ पूछ रही थीं कि अगर परसों भी जाना है तो कल ही चले जाएँ। ताशा फूफो और नूर आंटी के साथ एक दिन तो वैसे भी अकेले रहना ही है, 2 दिन रह लेंगे। अब मैं इन्हें ये बात कैसे समझाती कि आप काम में मसरूफ़ हैं, वरना इस तरह से इन लड़कियों को तन्हा यहाँ छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दादू साईं ने अपने कमरे में आते ही सबसे पहले बहराम को फ़ोन किया था। जी दादू साईं, आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर जाएँ, मैं इन दोनों का ख़्याल रखूँगा। लेकिन प्लीज़ आप इनको नहीं बताइएगा नहीं कि मैं कि घर आ रहा हूँ। इस तरह से वो कंफ़र्टेबल नहीं रहेंगी। ठीक है बहराम साईं, जैसा आप ठीक समझें। वैसे आप इतना टाइम से पाकिस्तान में हैं, ये बात आपने मुझे भी नहीं बताई। वो शिकवा करते हुए अंदाज़ में बोलीं तो वो मुस्कुरा दिया। इतने टाइम से नहीं दादू साईं, बस कुछ ही दिन हुए हैं आए हुए, और वैसे भी अब तो आ ही रहा हूँ आपके पास, इसने मुस्कुराते हुए कहा। और इसके बाद दादू साईं इसके लहजे की उदासी नोट करते हुए आज के दिन में की गई जानू साईं की मस्तियाँ बताने लगीं। जी नहीं सुनते हुए वो हमेशा की तरह मुस्कुराए जा रहा था। अच्छा, मुर्गी की भी रूह तड़पती है, मुझे तो आज भी पता चला, इससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता कि मुर्गी की कोई रूह भी होती है। इसने कहका लगाते हुए कहा तो दादी साईं मुस्कुराईं। जी हाँ, आपकी बहन के लिए तो होती है।
और वो मोहतरमा जो कहती हैं हमें मानना पड़ता है, इनकी शान में गुस्ताखी तो नहीं कर सकते। दादू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहती है मेरी गुड़िया, और खबरदार जो किसी ने मेरी गुड़िया की शान में गुस्ताखी की। बहराम के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। कल से वो अपनी गुड़िया और दिल के करीब रहने वाला था। जानता था वो इसे कोई जल्दी कबूल नहीं, लेकिन दिल तो शायद कभी नहीं, लेकिन वो अपनी गुड़िया को बना लेगा। और इसे यकीन था कि इसे की गुड़िया बहुत जल्द इस पर यकीन करने लगेगी। तायशा फंक्शन अटेंड करके अभी आराम की नीयत से आकर बैठी थी। नूर तो जब से आई थी किसी न किसी काम पर लगी हुई थी। यहाँ बैठते ही इसे शाज़म का ख़्याल आ गया, जो कह रहा था कि आप ही बहू से मिलने ज़रूर जाइएगा। दिल तो इसका अपना भी बहुत चाह रहा था इससे इसे मिलने का। इसकी दादी और चाची तो आज शादी पर भी आई हुई थी। वो इनके लिए बहुत बुरा वक़्त था। ज़रिश की ज़िम्मेदारी सँभालना इसकी बूढ़ी दादी के बस की बात ना थी। वो और ज़रिश की माँ इसकी बेहतरीन दोस्त रह चुकी थी, और वो बुरे वक़्त में अपनी इस दोस्त का साथ निभाना चाहती थी। इसे फ़ख्र तो अपने बेटे पर था, जो इसके एक बार इसके कहने पर फ़ौरन निकाह के लिए तैयार हो गया, और लड़की तक का पूछा भी नहीं कि कौन है, कैसी है, बस इतना कहा, अम्मा साईं जो आप फ़ैसला करेंगी वो ठीक ही होगा। जाज़म तो बचपन से ही नायला के साथ मंसूब था। वो जाज़म के दिल के जज़्बात को हमेशा से जानती थी, लेकिन शाज़म ने कभी इसके सामने अपनी पसंद का ज़िक्र नहीं किया था। इसीलिए 2 साल पहले जब ज़रिश के वालिदैन का इंतकाल हुआ, इसने शाज़म से निकाह की बात की तो वो फ़ौरन मान गया। अभी वो सोच रही थी कि नूर के फ़ारिग होते ही वो ज़रिश के घर इससे मिलने ज़रूर जाएगी। ज़रिश की शरारतें और टची तबीयत के बारे में वो हमेशा से जानती थी। इसे अपनी चीज़ें किसी के साथ भी शेयर करना हरगिज़ पसंद ना था। काफ़ी हद तक लापरवाह सी लड़की थी। आज इसकी दादी ने इसकी एक और ख्वाहिश के बारे में इसे बता दिया कि वो अपने शौहर के साथ काम करना चाहती है। वो जानना चाहती है कि इसका शौहर किस तबीयत का मालिक है। मतलब साफ़ था कि वो शादी से पहले जाज़िम को समझना चाहती थी। इसमें कुछ गलत तो ना था। तायशा को इसका ये फ़ैसला बहुत पसंद आया, और इसने तो मंज़ूरी भी दे दी थी, लेकिन असल मसला तो ये था कि जाज़िम से ये बात छुपाना था कि इसके ऑफ़िस में काम करने वाली लड़की इसकी मनकूहा है। और ये कैसे हो सकता था कि शाज़म अपनी बीवी को पहचाने ना, एक बार ही सही, लेकिन इसने तस्वीर देखी थी। हो सकता है कि वो इसे अब भी याद हो। हाँ, लेकिन इसके बारे तायशा से जब भी बात करता था वो यही कहता था कि आपकी बहू कभी इसने ज़रिश का नाम नहीं लिया था। शायद ही वो ज़रिश का नाम ठीक से जानता था। अगर वो शाज़िम के ऑफ़िस में काम करती तो शायद ही वो इसे पहचान पाए, क्योंकि वो 2 साल पहले जो तस्वीर इसने शाज़िम को दिखाई थी वो तो एक कॉलेज के फंक्शन की थी, जिसमें वो कोई यूनिफ़ॉर्म पहने स्टूडेंट लग रही थी। इसे यकीन था कि अगर ज़रिश इसके सामने आए तो इसे पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि अब ज़रिश बहुत बदल चुकी थी, अपना ख़्याल रखने लगी थी। अब वो कोई छोटी बच्ची तो हरगिज़ नहीं लगती थी। एक तो वो खूबसूरत थी, दूसरा इसे पता था कि वो खूबसूरत है, इसीलिए अपने हुस्न का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी खूबसूरती को हमेशा मज़ीद बढ़ाने के बारे में ही सोचती रहती थी। और सबसे अहम बात जो वो हर बात में कहती थी कि इसका शौहर इसे देखेगा उजड़ी हुई हालत में तो इसे कितना बुरा लगेगा, यानी कि वो रिश्ते के लिए भी मुकम्मल रज़ामंदी के साथ तैयार थी। ये सारी बातें तो इसे ज़रिश की चाची ने बताई थी। वो खुद भी इससे एक बार मिलना चाहती थी। 4 महीने पहले वो जब यहाँ आई थी तब इसके साथ मुलाकात हुई थी। हर वक़्त हँसती, मुस्कुराती, शरारतें करती ज़रिश इसे अपने बेटे की जैसे ही लगती थी। वो जानती थी कि वो दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुज़ारेंगे। ज़रिश को सोच कर इसे अपना आप याद आता था। वो भी तो हर वक़्त अपने आप को तैयार रखती थी। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी अपने आप को मज़ीद खूबसूरत बनाने के तरीके ढूँढती रहती थी, और जुनैद इसे हसीन सजनी कहता था। हर वक़्त इसकी तारीफ़ के बहाने ढूँढता रहता, और अपने शौहर की तारीफ़ पर वो हमेशा कहती थी, वो है ही ऐसी लायक कि इसकी तारीफ़ की जाए। जुनैद को सोचते हुए इसके गाल सुर्ख़ होने लगते। जुनैद को इस दुनिया से गए 15 साल गुज़र चुके थे, लेकिन आज भी इसकी यादें तायशा की ज़िंदगी का बेहतरीन असासा थी। जुनैद को याद करके वो रोती या उदास नहीं होती थी, क्योंकि जुनैद को इसकी उदासी पसंद नहीं थी।
वो तो हमेशा इसे हँसते मुस्कुराते देखना चाहता था और जुनैद की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वो भी हमेशा हँसते मुस्कुराते रहती। बेशक हमसफ़र के छिन जाने का गम इसे भी बेतहाशा था, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी था अपने बच्चों की परवरिश बेहतरीन अंदाज़ में करना। वो जुनैद के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। बेशक वो काली रात इनकी ज़िंदगी में आकर जा चुकी थी, बेशक वो काली रात इनकी ज़िंदगी से हर खुशी छीन चुकी थी, लेकिन इसने वादा किया था वो अपनी खुशियाँ फिर से जिएगी अपने बच्चों के ज़रिए, अपने बच्चों के लिए। अब वो नूर के फ़ारिग होने का इंतज़ार कर रही थी, जो मेहमानों को दरवाज़े तक छोड़ने गई थी। नूर ने जाने से पहले कहा कहा था वापस आकर चाय पिएँगे और फिर चले गए तुम्हारी बहू से मिलने के लिए और जाने से पहले अपनी भतीजी को चाय बनाने का ऑर्डर भी देकर गई थी और फिर कुछ ही देर में चाय और दोनों ही हाज़िर थे। ये ड्रेस कैसी रहेगी? जानू साईं ने एक ड्रेस अपने साथ लगाते हुए दिल को मुखातिब किया। नहीं जानू साईं, इसका कलर बहुत डार्क है। दादू साईं इस तरह के कलर नहीं पहनती हैं और प्लीज़ जल्दी करो। दादू साईं ने कहा है कि अगर 1 बजे से पहले हम घर पहुँच गए तो वो हमें शॉपिंग लेकर जाएँगी अपने साथ, वरना वही पुराने कपड़े ही ले जाएँगी। और तुम्हें तो पता है इनका कोई भरोसा नहीं है, अगर आज भी हम इनके ड्रेस नहीं देखते तो वही ओल्ड फैशन कपड़े पहन के चली जाती हैं। दिल इसे बताते हुए जल्दी-जल्दी हाथ चलाने लगी। जानो साईं तुम ये सब कुछ छोड़ दो, जल्दी से जाओ और दादू साईं के लिए जूते सेलेक्ट करके लाओ, तब तक ड्रेस मैं पसंद करती हूँ। वो इसे देखते हुए बोली तो जानू साईं ने किसी रिपोर्ट की तरह हाँ में सर हिलाते हुए जूतों की शॉप की तरफ दौड़ लगाई। वक़्त बहुत कम था, इन्होंने बहुत कुछ पसंद करना था। दादू साईं तो कपड़ों और जूतों के अलावा कुछ भी नहीं पहनते थे, लेकिन दिल का इरादा कुछ चीज़ें अपने लिए भी खरीदने का था। इसने दादू की पसंद के मुताबिक चंद ड्रेसेस ली और फिर शॉप से बाहर जानू साईं वाली दुकान पे जाने लगी। अभी वो जानू साईं की तरफ जा रही थी कि इसकी नज़र ज्वेलरी शॉप के बाहर लगे एक बहुत ही खूबसूरत नफीस पेंडेंट पर पड़ी, जिसने इसे आगे की तरफ एक कदम भी ना उठाने दिया। अपने दिल को बहुत समझाने के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं कर पाई। फिलहाल इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसे खरीद पाती। लेकिन इसकी कीमत तो पूछ रही थी। इसे यकीन था दादू साईं थे ये दिला देंगे। इसने सोचा था कि 2-4 दिन के लिए इस दुकान के अंकल को इस लॉकेट को फ़रोख्त करने के लिए मना कर देगी और 2-4 दिन के बाद आकर ले जाएँगी। इसने यही सोचते हुए दुकान के अंदर कदम रखा और लॉकेट की कीमत पूछी। लॉकेट वाक़ई ही बहुत महँगा था, लेकिन इसका दिल इस पर ऐसा आया था कि छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। क्या आप 2 दिन के लिए इसकी सेल बंद कर सकते हैं? मैं 2 दिन के बाद इसे आकर ले जाऊँगी। इसने मिन्नत भरे अंदाज़ में कहा तो सामने खड़े अंकल मुस्कुरा दिए। ठीक है बेटा, मैं आपके लिए इसकी सेलिंग ऑफ कर देता हूँ और 2 दिन बाद ही ये आकर ले जाइएगा। अंकल ने मुस्कुराते हुए इसकी बात मानी तो दिल भी खुश हो गया। लेकिन जैसे वो जाने के लिए पलटी, सामने खड़े वजूद को देखकर आँखों में मिर्चें उभरने लगीं। अगर कुछ चीज़ पसंद आ जाए तो इसको इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। दिल साईं चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट लिए वो इसकी तरफ देखते हुए बोला। आँखें तो जैसे सदियों से इसके दीदार की खातिर वीरान पड़ी थी। जो नसीब होते हैं मुस्कुरा उठीं। बहराम साईं ये शॉपिंग मॉल है, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। वो बेबसी से बोली, ठीक है अगर तुम कोई तमाशा नहीं चाहती तो जल्दी से ये खूबसूरत पेंडेंट अपनी खूबसूरत गर्दन की ज़ीनत बनाकर इसे अनमोल कर दो, वरना फिर यहाँ तमाशा होगा। वो इसकी बेबसी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। अगर तुम चाहती हो कि ये काम मैं अपने हाथों से करूँ तो मैं मुंतज़िर हूँ। और वो इसे देखकर एक बार फिर से मुस्कुराया। वैसे हक़ रखता हूँ मैं इसके अंदाज़ में अजीब-सा इस्तेहकाक था। और इस वक़्त दिल को इसके चेहरे की मुस्कुराहट से ज़्यादा बुरी दुनिया की कोई चीज़ नहीं लग रही थी। इसलिए एक झटके से कहाँ से लॉकेट उठाया और पहनकर बाहर निकल गई। जबकि बहराम शाह अपनी ज़िद पूरी करके बहुत खुश था। बहराम ने मुस्कुराते हुए लॉकेट की कीमत अदा की। इसका इरादा दिल के पीछे जाने का था, लेकिन बाहर निकलते ही वो न जाने कहाँ गायब हो गई। यकीनन इसे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो मुस्कुराकर इसे ढूँढने लगा। इसे जूते पसंद करने में अच्छा खासा वक़्त लगता था। दादू साईं की पसंद के मुताबिक चीज़ ढूँढना तो वैसे भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए अभी तक वो दादू साईं की मर्ज़ी के मुताबिक जूते खरीदने में मसरूफ़ थी। आखिर बड़ी मुश्किल से इसे कुछ जूते पसंद आए जो इसने खरीदने के लिए काउंटर पर रखी। जो काउंटर मास्टर ने इसे
इसे पैक करके दिए। इससे पहले कि वो इनकी पेमेंट करती, बाहर से इसे कुछ नज़र आया। चारों तरफ गंध लिए गार्ड्स और इनके दरमियान वो शान बेनियादी से चलता हुआ हर लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। इसे पहचानने में हुरम को एक सेकंड भी ना लगा। वो फौरन भागते हुए बाहर निकली और बिना आदमी की परवाह किए इसके रास्ते में आकर खड़ी होगी। भागने की वजह से ये सांस अच्छी खासी फूल चुकी थी। आपको याद है कुछ दिन पहले हम स्टेडियम में मिले थे, मैंने आपसे पैसे लिए थे। वो तेज तेज बोलती इसे कुछ याद करवाने की कोशिश कर रही थी। इसके अचानक सामने आने की वजह से दाहिम की बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो चुके थे, जिन्हें इशारे के से पीछे करते हुए इस वक्त वो सामने खड़ी लड़की की आंखों का रंग देखने में मसरूर था। आपको याद है ना? फिर वो फिर से पूछने लगी तो दाइम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, क्योंकि वो इसे ये नहीं बता सकता था कि इसे तो वो अब आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। शुक्र है, मुझे लगा आप भूल गए होंगे, इसीलिए स्टेडियम में मुझे देखकर आप चले गए। खैर कोई बात नहीं, आप प्लीज 2 मिनट यहाँ रुके, मैं अभी आपके पैसे लेकर आती हूँ। आप प्लीज कहीं जाइएगा मत, मैं अभी आती हूँ। इसका चेहरा देखकर मासूमियत से बोली तो दाइम का दिल चाहा कि हर चीज बुलाकर सामने खड़े वजूद को खुद में छुपा ले। सर, मीटिंग शुरू होने में बमुश्किल 2 मिनट रह गए हैं। वाजिद ने इसे बताना चाहा, लेकिन इससे पहले ही दाइम ने हाथ उठाकर इसे चुप रहने का इशारा किया, जबकि वो लड़की अब इसके सामने से हटकर कहीं गायब हो चुकी थी। सर, 2 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है, आप 5,000 के लिए यहाँ रुक गए हैं। सर प्लीज, दूसरी पार्टी आपका इंतजार कर रही है और वो आपके लिए इस लड़की से ज्यादा जरूरी है। इस लड़की से ज्यादा जरूरी दाइम शाह सूरी के लिए और कुछ नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता सामने इसकी बात पूरी करता सामने इसकी बात काटते हुए गुस्से से बोला। "हम्म, इस शॉपिंग मॉल के ऊपर एक मीटिंग हॉल है, यहाँ अक्सर मीटिंग्स होती थी। आज इसी वजह से दाइम यहाँ आया था। ओ मैडम, पेमेंट तो करके जाए। एक लड़का दुकान से निकलते हुए इसके पीछे आया, ने इशारे से इसे रोक दिया। सर, वो मैडम जूतों की पेमेंट किए बिना ही चली गई। सामने खड़ा लड़का अंदाजा लगा चुका था कि ये आदमी कोई आम नहीं है। वाजिद, इसे पेमेंट करो। दाहिम वाजिद को इशारे से पेमेंट करने का कहकर एक बार फिर से इसी राह पर नजर जमाए खड़ा हो गया। यहाँ से वो गायब हो गई थी, जबकि वाजिद तो बहुत परेशान था। वो अपनी पार्टी को खतरे में डाल रहा था, एक ऐसी लड़की के जिसका नाम तक वो नहीं जानता था, लेकिन इस बात का अंदाजा लगा चुका था कि लड़की दाहिम शाह सूरी के लिए कोई आम लड़की नहीं। दिल हर तरफ जानू साईं को ढूंढ रही थी। अब वो बहराम शाह का सामना हरगिज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इसे छुप कर फिलहाल इसका मकसद सिर्फ हुर्रम को यहाँ से लेकर घर वापस जाना था। वो दोबारा ऊपर की तरफ जा रही थी जब वो सीढ़ियों से हुर्रम नीचे उतरती नजर आई। वो तकरीबन भागते हुए इसके सामने आई थी। जानू साईं के मिलते ही वो फौरन इसका हाथ थाम कर इसे घसीटते हुए मार्केट से बाहर ले जाने लगी थी। डाइम शाह ऊपर वाली बिल्डिंग में इसे देख रहा था। जानो साईं इशारा ऊपर की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन दिल तो इसकी सुन ही नहीं रही थी। दीदा मेरी जान, मेरी बात तो सुन ले। मैंने वही आदमी ढूंढ निकाला है जो हमने जिसके पैसे देने हैं। जल्दी से मुझे 5,000 रुपये दें। वो इसके साथ घसीटते हुए जल्दी जल्दी बोल रही थी, कहीं वो इसे लेकर बाहर न ले जाए। लेकिन दिल ने तो जैसे किसी की बात ना सुनने की कसम खा रखी थी। वो जोर जबरदस्ती से घसीटते इसे अपने साथ बाहर ले आई थी। शाह ने किसी लड़की को इस तरह से इसे घसीटते हुए देख लिया था, यकीनन इसकी बड़ी बहन थी। चुप रहो जानू साईं, वो सब कुछ हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल मेरे साथ चलो। वो इसका हाथ घसीट कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ चुकी थी। दीदा, क्या हो गया है आपको? वो बंदा इतनी मुश्किल से मिला था, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक मैंने इन जूतों की पेमेंट नहीं की। वो जूते वाले अंकल हमें चोर समझेंगे। वो अपने हाथ में जूतों का बैग पकड़े हुए हुए इसे दिखाकर बोली। बहराम साईं थे वहां पर। वो पहले ही जबरदस्ती मुझे लॉकेट खरीद के दे चुके हैं। अब अगर मैं मजीद वहां रुकती तो न जाने क्या तमाशा करते। वो मेरी बेबसी का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकते थे। दिल के कहने पर जानू साईं की तेज तेज चलती जुबान बंद हो चुकी थी। क्या बहराम लाला पाकिस्तान में है? एक अजीब सी खुशी ने इसके दिल को छुआ था, लेकिन अगले ही पल वो दिल का चेहरा देखकर मायूस होगी। इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आई। जूतों की पेमेंट तो करनी पड़ेगी यार। बाकी इसी तरह से तो वो लोग हमें छोड़ेंगे, चोर समझेंगे। चलो कोई बात नहीं, कल हम वापस यहाँ आकर इनको पेमेंट कर देंगे।
दिल इस वक्त हरगिज भी वापस मार्केट नहीं जाना चाहती थी। इसकी कंडीशन को समझते हुए जानू साई ने भी हाँ में सर हिलाया था और वो स्टेडियम वाले पैसे जूतों का ख्याल दिमाग से निकलते निकलते ही इससे स्टेडियम का ख्याल आ गया था। वो तो आज ही इतनी मुश्किल से मिले थे, पता है इनके आगे पीछे 4 से 5 गार्ड थे जो गन लेकर खड़े थे, लेकिन मैं इनके पास गई और सीधा कहा कि रुक जाए, मुझे आपके पैसे लौटाने हैं। दीदा क्या वो भी हमें चोर समझ रहे होंगे? वो मासूमियत से इसका चेहरा देखकर बोली, नहीं जानू ताई, वो समझ गए होंगे कि किसी मजबूरी की वजह से तुम वापस नहीं आई और इंशाल्लाह हम इनके पैसे वापस दे देंगे। वो कौन था, किसी दूसरे मुल्क या दूसरे शहर रहते हैं, यहाँ हम पहुंच नहीं सकते, आज नहीं तो कल से ही वो हमें दोबारा मिलेंगे। अगर 5 दिन में वो 2 मुलाकातें हो सकती हैं तो आगे भी मुलाकात मुमकिन है, तुम परेशान मत हो, दिल ने से समझाते हुए कहा। तो जानू साई ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वापस तो वो दोनों ही नहीं जाने वाली थी। वो न जाने कब से सामने पार शीशे की दीवार के साथ बैठी हुई लड़की को देख रहा था, जो बार बार माथे से पसीना साफ कर रही थी। न जाने क्यों इसे एसी की कूलिंग में भी पसीना आ रहा था। इस वक्त यासिम का सारा ध्यान बाहर की तरफ था। कहा, क्या बात है, बाहर क्या देख रहा है? कब से अरहम इसके साथ बैठकर पूछने लगा। आज वो अपनी सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू ले रहा था। यासिन को भी इसी ने बुलाया था ताकि इसके काम में इसकी मदद कर सके। यासिन को कोई खास काम नहीं था, इसलिए यहाँ आ गया। इस लड़की को देख रहा हूँ यार, वो नर्वस क्यों है? बाकी सारी ये लड़कियों को देख, कितनी टैलेंटेड और ब्रॉड है, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। और इस बेचारी को देख मुझे तरस आ रहा है, इस बेचारी पर, जिसने कॉर्नर में बैठी की लड़की की तरफ इशारा किया, जिसने अपनी फाइल इस तरह से उठाई थी जैसे कोई बहुत कीमती खजाना हो। शायद वो पहली बार नौकरी की तलाश में बाहर निकली थी। जो भी है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, बोल्ड लड़की, अपने हसन का कमाल दिखाती ना कि अपनी काबिलियत का। और इस तरह की लड़की अपनी काबिलियत से अपना मकाम बनाती हैं। ये नौकरी तो मैं इसी को दूंगा, अरहम ने फैसला करते हुए कहा। ओहो मेरे भाई, सब्र कर, पहले इंटरव्यू तो लेने दे, यासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि ध्यान अब भी बाहर बैठी इस लड़की पर ही था। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा काबिल कोई नहीं होगी। ये हैं हमारे मुल्क की पढ़ी लिखी लड़कियां, जिन्हें इनकी तालीम में नहीं बल्कि फैशन ने ये गरूर दिया, वो कब किसी से भी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती हैं, जबकि वो लड़की अपनी तालीम की काबिलियत दिखा रही है। बाकी सब कुछ छोड़ो, फिलहाल इसी लड़की को बुलाओ। इसने सामने खड़े अपने वर्कर से कहा। तो वो हाँ में सर हिलाता बाहर निकल गया। निशाल मैडम, सर आपको अंदर बुला रहे हैं, इसने अपने सामने बैठी लड़की को कहा। तो वो फौरन घबराते हुए अपनी सीट से उठ और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। दुपट्टे को अच्छी तरह से अपने आप को कवर करके वो अंदर आ गई और हमने मुस्कुरा कर इसे वेलकम किया। वो चलती हुई अंदर आई और इस यासिम के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई। सामने बैठा आदमी तो इसे ऑफिस का मालिक था। ये बात वो जानती थी। ये साथ में बैठा शायद इस ऑफिस में काम करने वाला कोई वर्कर होगा। इसने खुद से अंदाजा लगाया। और हम इसका इंटरव्यू लेने लगा। अरे आपने तो सिर्फ बीए किया है, वो भी सिंपल, ऐसे में आपको जॉब कैसे दूं? सर मैं जॉब के साथ साथ अपनी तालीम जारी रखूंगी, वो इसकी बात को काटते हुए बोली। तो अरहम के साथ यासिम भी मुस्कुरा दिया। इन सब लड़कियों को देख रही हैं आप, वो बीए से ज़्यादा एजुकेटेड है, हम ये नौकरी आपको क्यों 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 दें? क्या? यासिम इसके चेहरे को देखते हुए बोला। ना जाने क्यों इसकी आंखें इसके चेहरे से हटने से इनकारी थी। सर आपको वो लड़कियां मुझसे ज़्यादा काबिल लगती तो आप सबसे पहले मुझे अंदर नहीं बुलाते। आपको मुझ में कुछ खास तो लगा है कि जहां मैं पहले बैठी हूँ, इस लड़की में अचानक ही हिम्मत आ चुकी थी। ठीक है, हम आपका इंटरव्यू लेते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। यासिम न जाने क्यों इसे देखे जा रहा था, जबकि अरहम बात करते हुए इसका इंटरव्यू लेना शुरू कर चुका था। दादू साईं, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, प्लीज़ कल जल्दी आ जाइए। आपको पता है ना, दिल दीदा की सालगिरह है कल। दिल तो अंदर से ही दादों से मिलकर नमाज अदा करने जा चुकी थी, जबकि जानू साईं तो अब तक इनके साथ चिपकी हुई थी। हाँ मेरी जान, फिक्र मत करो, मैं वक्त पे आ जाऊंगी। कल शाम को इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर दिल साईं की खूब सालगिरह मनाएंगे और केक भी खाएंगे। और अपनी दिल दीदा को बता देना कि कल मुझे कोई शुक्र नहीं होगा। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कोई शुक्र
घर नहीं होगा, बता रही हूँ, साल में सिर्फ 2 दिन ही। हाँ, मुझे कोई शुगर नहीं होगा, बता रही हूँ, साल में सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन ही तो मिठाई खाती हूँ मैं, वो भी दिल की बच्ची ने पाबंदी लगाई हुई है। दादो साईं मुंह बनाती हुई गाड़ी में आ बैठी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दिल का भी, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी और डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारा प्यार करते हुए गाँव के लिए निकल चुकी थी। जबकि जानू साईं अब वापस अंदर आ चुकी थी। दिल दीदा को पहले नहीं बताऊंगी इनकी सालगिरह, कल अचानक से दादू साईं वापस आएंगी तो सरप्राइज दूंगी। इससे झट अपने दिमाग में प्लान बनाया और कुछ खाने के लिए किचन का रुख किया। वो खिड़की के रास्ते से अंदर आया था। वो तो दादू साईं के जाने के बाद से लेकर अब तक यहीं पर था। ये बात अलग थी कि दिल और जानू दोनों ही इसे नहीं देख पाई थी। आज दिल की सालगिरह थी। अगर सब कुछ ठीक होता तो वो दिन कितने अच्छे से मनाते, लेकिन एक भयानक रात इनकी सारी जिंदगी बर्बाद कर गई थी। वो बिना आवाज पैदा किए खामोशी से इसके बिल्कुल नजदीक आकर बैठा और अब बहुत देर से वो इसे देखे जा रहा था, उम्मीद और हसरत भरी नजरों से। इसके साथ ही हुरम इससे लिपटी गहरी नींद में सो रही थी। इसकी नन्ही सी गुड़िया बिल्कुल इसकी माँ की तरह दिखती थी। इसने बहुत नरमी से दिल के नाजुक गाल को छुआ था। ऐसे डर था कहीं इसकी आंखें आंखें ना खुल जाए, कहीं वो इसे देखकर फिर से ना चिल्लाने लगे, कहीं वो इसके दिल पर खंजर चलाते हुए इसे अपनी नफरत का इजहार ना करने लगे। हैप्पी बर्थडे माई हार्ट बीट, आई लव यू सो मच। अपने हाथ के अंगूठे से इसके लब से हिलाए वो नरमी से बोला। किसी की मौजूदगी में दिल को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। इसने पूरे कमरे में नजर घुमा कर देखा। जानो साईं, तुमने खिड़की बंद की थी ना? ने बहुत थोड़ी सी आवाज में हुर्रम से पूछा था कि इसकी नींद खराब ना हो। हाँ दीदा, दीदा, मैंने बंद कर दी थी, लेकिन ये किसने खोल दी? हुर्रम की कच्ची नींद टूट चुकी थी। एक तो वो डरपोक हद से ज्यादा थी। खुली खिड़की से झांकते चांद को देखकर घबराकर और दिल से लिपट गई। कोई आया था क्या यहाँ पे? वो सहमे हुए लहजे में पूछने लगी। कहीं बहराम लाला? इससे आगे वो कुछ सोच भी नहीं पाई, क्योंकि दिल की आंखों की सख्त गोरी ने इसे इसके अल्फाज भी मुकम्मल न करने दिए थे। नहीं जानू, यहाँ कोई नहीं आ सकता और वो यहाँ नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगर वो आ भी गया ना तो यहाँ इसे नफरतों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दिल ने उठकर खिड़की से बाहर मुस्कुराते चांद को देखा, लेकिन अगले ही लम्हे नफरत से इसने खिड़की बंद कर दी। कोई जगह नहीं है तुम्हारी बहराम शाह मेरी जिंदगी, मेरी और मेरी हुर्रम की जिंदगी में। तुम कभी शामिल नहीं हो सकते। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे एहसास से, तुम्हारी खुशबू से। इस चांद से नफरत है मुझे तुमसे, बेइंतहा नफरत। अपनी सोच में वो कदम उठाते वापस बेड पर आ गई। यहाँ हुर्रम एक बार फिर से इससे लिपट चुकी थी। आई हेट बहराम लाला, मैं इनको कभी नहीं देखना चाहती। इससे लिपट कर वो भराई हुई आवाज में बोली, जबकि खिड़की की दूसरी तरफ खड़े मौजूद वजूद का दिल चाह के वो धाड़े मार मार कर इसकी मोहब्बत और इसकी बहन दोनों इनसे बेतहाशा नफरत करती थी, लेकिन फिर भी वो इनसे दूर नहीं जा सकता था, क्योंकि इनसे दूर रहना इसके बस से बाहर था। वो दोनों इसके साथ रहे, ये नामुमकिन था। इसने घर में कदम रखा तो इसकी नजर छत पर एक छोटे से बच्चे के बाल झंझोड़ती दरिश पर पड़ी। वो हैरत से अपने होने वाले बहू का अंदाज देख रही थी। जबकि इसका ये अंदाज देखकर नूर भी अच्छी खासी परेशान हो चुकी थी। इससे पहले जब नूर और तायशा यहाँ आई थी, वो काफी सुलझी हुई लड़की लगती थी। ये अलग बात है कि इसकी की शरारतों के चर्चे पूरे गांव में आम थे, लेकिन खुद से छोटे लड़के के बालों को इस तरह से खींचते हुए इसे रख कर 2 थप्पड़ लगाते देखकर तायशा तो अपने होश ही खोने लग गई थी। या अल्लाह, मेरा मासूम बच्चा कैसे गुजारा करेगा इस आफत के साथ? तायशा को अगले ही लम्हे शायद उनकी परेशानी खाने लगी, जबकि इसकी आवाज सुनकर नूर के लबों पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। परेशान क्यों हो रही हो तायशा? ये दोनों एक जैसे हैं, खुद एक दूसरे को संभाल लेंगे, और वैसे भी तुम्हारी शरारतों की पोटली को ये अब यही संभालेगी, देख लेना, नूर ने हंसते हुए कहा। दरिश का ध्यान भी नीचे दरवाजे की तरफ गया। यहाँ अपनी सास और मामी सास को देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कितना अच्छा इंप्रेशन बनाया हुआ था इसने अपना, और इस बच्चे की वजह से मिलिया मेट हो गया। कल इतने जरिश के पतंग को काट कर इतना शोर मचाया था कि पूरे गांव को खबर हो गई कि जरिश पतंगबाजी में इससे हार गई है। तब से ही इसने अपना जासूस तय्यमी का बेटा
बेटा बनाकर इस बच्चे के पीछे लगाया था, जो आज इसे न जाने कहाँ से पकड़ के ये आया। तब से ज़रिश इससे अपनी पतंग का बदला ले रही थी। चल चल बे, तू निकल यहाँ से, और तकरीबन 2 माह तक अपनी शक्ल मत दिखाना। और वो घूरते हुए दुपट्टा सलीके से सर पर जमा कर के आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। जबकि तायशा को इसका ये अंदाज घबराहट में मुब्तला कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी, मिलना तो था ही। आखिर वो इसकी बेटी की मनहूआ थी, शुक्र था कि वो इससे मिलने आ गई, वरना शायद इसे पता ही नहीं चलता कि कितनी बड़ी तीस-मार खान है। तायशा को अपना मासूम बेटे की फिक्र खाई जा रही थी, जबकि नूर इस लड़की के पल में बदलते रंग देख रही थी। आंटी, वो लड़का बहुत बदतमीज है, मुझे गालियां देता तो और खुद से छोटे बच्चों को मारता भी है। बस ये फरहान रोज स्कूल से रोता हुआ आकर मुझे शिकायत लगाता, तो मैंने कहा कि बुलवा कर इसे मैं ठीक करती हूँ। वो आगे से मेरे साथ भी बदतमीजी करने लगा, तो मैंने रख कर लगा दी। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। हाथों के जोर दिखाते हुए जल्दी जल्दी इसके लिए पकौड़े बन और चाय बनाई थी, और अपनी पोजीशन में इसकी नज़रों में साफ करने के लिए मुसलसल अपनी सफाइयाँ पेश कर रही थी। लेकिन ताशा को अब यकीन हो चुका था, ये लड़की इतनी मासूम नहीं है जितनी इसने अब तक समझ कर रखी है। उठ जाओ जानू ताई, मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है। जानू ताई के पेपर होने वाले थे, जिसकी वजह से कुछ दिन से वो छुट्टियों पर थी, कॉलेज नहीं जा रही थी, और वो सुबह भी देर से जागती थी। वैसे तो दादो साईं की वजह से आसानी होती थी इसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन आज वो नहीं थी, तो दिल ही इसके लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रखते हुए इसे जगाने लगी। वो दीदा आप यहाँ रख दो, मैं बाद में ओवन में गर्म करके खा लूंगी। वो फिर से नींद में उतरते हुए बोली, ठीक है, लेकिन याद से खा लेना। अच्छा है, मैं अब जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, और दरवाजा अंदर से बंद करो। वो इसे जबरदस्ती अपने साथ खेलती हुई बाहर ले कर आई। बहराम तो अपनी बहन का ये सुस्त अंदाज देखकर बहुत मायूस हुआ था। इसका इरादा तो आज सारा दिन इसके साथ मस्तियां करने का था। वो जानता था कि दिल को बुरा न लगे, इसलिए वो इससे बात नहीं करती, इससे का इजहार करती है। लेकिन कोई बहन भी अपने भाई से नफरत कर सकती है क्या? इसे यकीन था वो बहुत जल्द जानू साई को अपनी साइड कर लेगा। इसे बताएगा जिस गुनाह की सजा इसे दी जा रही है, इसमें तो इसकी कोई गलती ही नहीं। इसने तो बस इसे हॉस्टल भेजना चाहा था, इसलिए हवेली में आग लगने की बात की थी। इसी ने हवेली में आग लगाने की बात की थी। असल में सारा किया कराया तो दाहिम शाह सूरी का है। हाँ, दाहिम शाह सूरी आग लगा रहा था। जब बहराम भागते हुए वहां पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश करने लगा, तो वो तो बात दाहिम के हाथ से आग की लकड़ी का शोला छीनने की कोशिश कर रहा था। इसे क्या पता था वो खुद या इसी आग की लपेट में हमेशा के लिए आ जाएगा। अब तो वो जानता भी नहीं था कि दाहिमशाह सूरी कैसा दिखता है। 15 साल पहले हवेली में वो आग दाहिमशाह सूरी ने लगाई थी, जिसमें बहराम के अपनों के साथ साथ इसके अपने भी जलकर मर गए थे। कितना बेबस था वो, अपने माँ बाप को आखिरी अलविदा तक ना कह पाया, जान देने वाले ताया और ताई का आखिरी दीदार तक ना कर पाया, सिर्फ इस दाहिमशाह सूरी की वजह से, जिसने अपने इस बदले के लिए पूरी हवेली में वो आग लगाई। मुकदम शाह ने इसे अपने बेटे का मुकाम दिया था। हुरिया भी तो इसे अपना बेटा कहती थी। वो दोनों इसको बहराम का दर्जा देने लगे थे, इसको इसी की तराजदी जानने लगे थे। इनमें भी जब वो दाइम शाह सूरी को याद करता, इसकी आंखों में गुस्से की शरारे निकलने लगते। वो इस शख्स इंतहा की नफरत करता था, जिसकी वजह से इसके बाप इसके अपने इससे बिछड़ गए थे। लेकिन अफसोस वो इस शख्स को पहचान था। इस इल्जाम में बहराम और दाइम ने दोनों ने 10 साल जेल में रहे, लेकिन एक के साथ नहीं, क्योंकि 2 बार जेल में इन दोनों के दरमियान इतनी बुरी तरह से लड़ाई हुई कि वो दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से जख्मी कर चुके थे, जिसके नतीजे में कोर्ट से ऑर्डर आने पर इन दोनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। पिछले 6 साल से बहराम दिन रात दाइम शाह सूरी की तलाश में था, लेकिन न जाने वो कहाँ गया था। इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब कुछ दिनों से वो बेफिक्र हो चुका था। वो ये भी जानता था कि दाइम शाह सूरी खुद इस पर हमला करेगा बहुत जल्द।
سر بہرام شاہ پاکستان آ چکا ہے، میں اس کے بارے میں ساری انفارمیشن لے چکا ہوں، لیکن فی الحال ہم کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتے۔ 2-3 دن میں آپ کی پارٹی کی سیٹ کنفرم ہونے والی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے جیل میں رہنے کی وجہ سے پہلے ہی سیٹ خطرے میں ہے۔ فی الحال ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، ورنہ آپ کے بابا کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ سیاست میں رکھا گیا آپ کا پہلا قدم ہے، جس پر میرے خیال سے آپ کو کسی بھی قسم کے خطرے کو منڈلانے نہیں دینا چاہیے۔ واجد اس انفارمیشن دیتے ہوئے سمجھانے بھی لگا، کیونکہ دائم کے چہرے پر آنے والے غصے کی لہر کو دیکھ کر وہ خود بھی گھبرا گیا تھا۔ بہرام شاہ کا نام سنتے ہی اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہتی تھی، وہ اس غصے کی وجہ سے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ 15 سال پہلے اس نے بہرام کی وجہ سے اس حویلی میں اپنے اپنوں کو کھو دیا تھا، کیونکہ بہرام نے ضد میں آ کر اس حویلی کو آگ لگاتی تھی پر الزام اس پر لگانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ بہرام کے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جسے آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ تیل کا ڈبہ تو پھر ان کے ہاتھ میں تھا، مطلب آگ اسی نے لگائی تھی، اور پھر بعد میں الزام اس کے سر رکھ دیا۔ بہرام شاہ اس کے اپنے چھین چڑکا تھا، اور اسے وہ دن میں نہیں بھولتا تھا جب مقدم شاہ نے اسے بیٹا کہہ کے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور اسی کے بیٹے نے اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، جس کی وجہ سے اب اسے شاہ خاندان سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ تمہارا سارا خاندان ایک جیسا ہے، سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ۔ بہرام، تم نے آگ لگائی میرے اپنوں کو ختم کرنے کے لیے، اور اسی آگ میں تم نے اپنے اپنوں کو بھی جلا دیا۔ اسے دھڑکن، ظہور یا مقدم اور کردم کی موت کا افسوس تھا، اور اسے سب سے زیادہ افسوس تھا کردم کے اس چھوٹے سے 3 ماہ کے بچے کی موت کا، جو اس سے سب میں بالکل بے قصور تھا۔ گھر کے سب سے بڑے کمرے میں دادا سائیں کی لاش جلتی ہوئی ملی تھی، اور اس کے وفادار نوکر جنید نے ہر ممکن طریقے سے سب کو بچانے کی کوشش کی۔ کردم اور مقدم کی بیٹیوں کے علاوہ وہ مقدم شاہ کی ماں کو بچانے میں بھی کامیاب رہا، لیکن جب باقی لوگوں کو آگ لگنے کا اندازہ ہوا تو تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حویلی پوری طرح سے راکھ ہو چکی تھی۔ بال ہال کمرے میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو آگ کی لپٹوں کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ کتنی دیر جنید اکیلا لڑتا رہا، دائم کو اس سے ہمدردی تھی، اور ان سب لوگوں سے بھی جو وہاں پر مارے گئے، لیکن اب اسے نفرت تھی ان سب لوگوں سے جو وہاں سے بچ نکلے تھے، کیونکہ وہ سب تو ابھی بہرام کے اپنے تھے، اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کے پاس تو کوئی نہیں تھا محبت کرنے کے لیے، سب چھوڑ کر چلے گئے تھے اسے، اور اب ایسے ہی سب بہرام کو چھوڑ کر جائیں گے کچھ، کیونکہ اگر وہ اپنے اپنوں کے بغیر اکیلا تنہا گزار رہا تھا تو وہ کوئی بہرام کو خوشی سے رہنے دے۔ یہ سب کچھ بہرام کی وجہ سے ہوا تھا، وہ اکیلا تھا صرف بہرام کی وجہ سے، اس نے اپنے اپنوں کو کھویا تھا صرف بہرام کی وجہ سے۔ اگر وہ اس حویلی کو آگ نہیں لگاتا تو آج اس کے اپنے اس کے ساتھ ہوتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر میں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔